Assalamu alaikum dear students. It's Javed Ahmed Shah with you. Today we are going to start a new lesson. It's Colors of Rainbow. It's at page number 92 of your class 8th English textbook. Introduction. Colors of Rainbow is a Dogri short story. It's a Dogri short story. ये डोगरी ज़बान की एक छोटी सी कहानी है. It's about the couple who engage in small quarrels and arguments. ये उस जोड़े के मुतलिक है. कपल मीन्स जोड़ा, मियाँ बीवी. who engage in small quarrels, जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते हैं. arguments means verbal dispute, ज़ुबानी वो जो उनमें जंग होती है. Finally things settle at a loveful and joyful note. और आखिरकार इख्तिताम इन झगड़ों का, इन लड़ाइयों का कैसे होता है? Loveful, that means full of love, evoking a feeling of love, and joyful means full of joy, यानी हंसते खुशी मोहब्बत भरे अल्फाज से इनकी इस लड़ाई झगड़े का इख्तिताम होता है. The story starts like that. The rain had just stopped. The narrator tells us that the rain had just stopped. जो कहानी सुनाने वाला कहता है कि बारिश जो है वो थम गई थी. Stop is a verb. Its second form is stopped and its third form is also stopped. You know a verb has three forms: stop, stopped, stopped. Present form of the verb, past form of the verb, and past participle form of the verb. Besides, there is a continuous form also. अगर stop का हम continuous form देखेंगे वो बनेगा stopping. Okay. I was looking at the window. The narrator tells. कहानी सुनाने वाला कहता है I was looking out of the window. मैं खिड़की से बाहर देख रहा था. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. Occasionally go from time to time. A drop of water fell from the awning of the window. खिड़की के साइबान से बारिश का कतरा कतरा टपक रहा था. awning here is it's awning here. जो खिड़की के ऊपर ये थोड़ी सी छत है, साइबान है, ये हमें बचाती है बारिश से और धूप से. awning here is means a piece of material attached to a building to give protection against the sun and rain. Okay. The clouds had cleared. जो बादल थे वो साफ हो गए थे. एंड द सन हैड आल्सो कम आउट. और जो सूरज है वो निकल चुका था बादलों के पीछे में से. व्हेन द सन शाइन्स इमीडिएटली आफ्टर रेन. जब बारिश के फ़ौरन बाद सूरज निकलता है. इट लुक्स वेरी प्लेजेंट. ये बहुत पसंदीदा होता है, खुशगवार होता है. प्लेजेंट, इट्स एंटोनिम इज अनप्लेजेंट. आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर. कहानी सुनाने वाला नरेटर कहता है मैं कुदरत की खूबसूरती का नज़ारा कर रहा था. ब्यूटीज ऑफ नेचर, नेचर मीन्स कुदरत. लॉस्ट इन थाट एंड आई वॉज लॉस्ट इन माई थाट्स. मैं अपने ख्यालों में खोया था. जस्ट आउटसाइड द विंडो. खिड़की से बाहर. देयर वर सम चिली प्लांट्स. वहाँ कुछ मिर्ची के पौधे लगे थे. चिली, यू नो इट्स मिर्ची. दे हैड ग्रोन क्वाइट टॉल. द प्लांट्स ऑफ द the chili plants had grown quite tall. वो बहुत बड़े हो गए थे. and were sprouting red chilies. and they were sprouting red chilies. they were displaying red chilies. उनमें जो लाल मिर्च लगी थी. drops of water were dripping. बारिश जो drops of water, पानी के कतरे, dripping वो टपक रहे थे. drip means टपकना. sliding down the plants. और जो ये चिली प्लांट्स थे वो इनमें से नीचे, इनके नीचे उतर रहे थे. All my attention was centered on the raindrops. All my attention, that means all the attention of the narrator was centered on the raindrops. उसकी सारी तवज्जो इन बारिश के कतरों पर थी. A slight breeze was blowing outside. बाहर थोड़ी हवा चल रही थी. breeze, हवा, was blowing outside. It was blowing outside. ये बाहर चल रही थी तो थोड़ी ठंड इसको महसूस हुई. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. I wrapped, मैंने ओढ़ ली. the bed sheet, जो बेड का शीट था वो मैंने ओढ़ लिया. tightly, around me tightly, जो मैंने ओढ़ लिया वो tightly. while sitting on the cot, जब मैं बैठा था किस पे, वो चारपाई पे वहाँ बैठा था. ओके. द किड्स वायर एट प्ले. बच्चे जो है वो खेल में मसरूफ़ थे, वो खेल रहे थे. गोइंग आउट एंड कमिंग इन.
वो अंदर आ रहे थे और बाहर जा रहे थे। They were making a lot of noise, वो बहुत शोर कर रहे थे। Who? The children were making, the kids were making a lot of noise. While the narrator was watching the beauties of nature, he was lost in his thoughts. At the same time, the kids were playing. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. वो जो है बहुत शोर कर रहे थे, बट आई वॉज मोर और लेस ओब्लिवस टू इट, लेकिन आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट, मुझे उसके बारे में कोई तवज्जो में नहीं था, वो जहन में वो नहीं था जब वो जो कर रहे थे, मेरी तवज्जो उन पे नहीं लगी थी। तो द चिली प्लांट्स वर डांसिंग इन द ब्रीज, जो मिर्च के जो पौधे हैं दे वर डांसिंग इन द ब्रीज, वो हवा में जैसे डांस कर रहे थे, जैसे नाच रहे थे। एंड वाटर ड्रॉप्स वर फॉलिंग फ्रॉम डम, और जो बारिश के कतरे थे वो गिर रहे थे, जो बारिश के कतरे चिली प्लांट्स पे थे जब हवा चल रही थी। दे वर फॉलिंग फ्रॉम डम। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स वर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई, स्काई होता है आसमान, आसमान में जो छोटे छोटे बादल के टुकड़े थे वो उधर उधर घूम रहे थे आसमान पे। समटाइम्स दे कवर्ड द सन, कभी कभार ये सन को कवर कर रहे थे, सूरज को ढांप रहे थे। एंड इट बिकेम क्लाउडी, और मुझे लग रहा था कि बादल है आज। एंड समटाइम्स द सन केम आउट, और कभी ये जो सूरज है ये निकलता था, जब बादल हटते थे तो सूरज निकलता था। लेट्स मूव फर्दर। हियर ए स्मॉल गर्ल जॉइन्स द स्टोरी, यहाँ पे एक जो छोटी लड़की है वो इस कहानी को ज्वाइन करती है। देखते हैं क्या है। पापा जी सी द सिंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, मुन्नी वाज सेइंग क्लिंगिंग टू मी। मुन्नी एक छोटी लड़की है, इस नरेटर की कहानी सुनाने वाले की बेटी है। शी वाज क्लिंगिंग टू मी, टू द नरेटर, शी वाज क्लिंगिंग टू नरेटर, वो नरेटर के साथ चिपकी हुई थी। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा पापा जी सी द सिंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, गुड्डा गुड़ी का झोला देखो। वायर इज इट डॉटर, आई आस्क्ड, मैंने कहा बेटी कहाँ पे है। देयर अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड, रिप्लाइड मुन्नी, मुन्नी ने जवाब दिया देयर अप इन द स्काई, वो वहाँ आसमान पे, मल्टी कलर्ड रंग बिरंगी। इज दैट द सिंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, क्या ये गुड्डा गुड़ी का झूला है। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। शी शॉट बैक विद अ टच ऑफ अनोयंस, वो नाराज हो गई और वापस जवाब दिया। देन हुज इट, तब किसका है। इफ नॉट दियर्स, अगर गुड्डा गुडी का नहीं है तो किसका है। ओके, अब नरेटर कह रहा है देयर इज अ कन्वर्सेशन, अ डायलॉग बिटवीन द फादर एंड हर एंड हिज डॉटर। जैसे नरेटर है और उसकी जो बेटी है, बेटी का नाम उसका मुन्नी है, तो इनके बीच में ये डायलॉग हो रहा है इधर। ओके, हु टोल्ड यू, आपको किसने कहा। नरेटर ने उसको कहा आपने किसको कहा, किसने आपको कहा ये गुड़ा गुड़ी का झूला है। ग्रैंड माँ टोल्ड मी, मुझे दादी ने कहा। आई सी देन इट मस्ट बी सो, हाँ आई सी, हाँ मुझे पता है। देन इट मस्ट, हाँ यकीनन ये गुड्डा गुड़ी का ही झूला होगा। एक्चुअली इट वाज अ रेनबो अप इन द स्काई, ये जब रेनबो थी वहाँ स्काई पे, उसी को देख के इसने गुड्डा गुड़ी का झूला इसको कहा था, स्विंग कहा था। ओके, आई शेड लुकिंग एट द रेनबो इन द स्काई, मैंने जब रेनबो देखी मैंने कहा हाँ यकीनन यही गुड्डा गुड़ी का झूला ही होगा। पापा जी आई टू वांट अ स्विंग, अब मुन्नी कह रही है पापा जी मुझे भी एक स्विंग चाहिए, झूला चाहिए। यू कैन हैव दिस वन, तो ये वाला ले लो। आई ट्राई टू पुट हर ऑफ, मैं सोच रहा था किसी तरह इसको भगाऊँ यहाँ से, इसको छुप कराऊँ यहाँ से, तो मैंने कहा ये वाला ले लो, ये जो आसमान पे है। दिस डज नॉट हेल्प, मुझे इससे क्या बनेगा। वाई शुड आई टेक समथिंग दैट्स नॉट माइन, मैं वो चीज़ क्यों लूँ दैट्स नॉट माइन विच डज नॉट बिलोंग टू मी, ये तो मेरा है ही नहीं, ये मेरा कहाँ है। आई बिगेन वॉन्डरिंग, मैं सोच रहा था। हाउ वाइज द लिटिल वन वाज, ये छोटी बच्ची कितनी अक्लमंद है। मुन्नी केप्ट टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मुन्नी बहुत चीज़ों के बारे में बातें कर रही थी। देयर आफ्टर, इसके बाद। बट आई कुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट, मेरी तवज्जो उस पर नहीं थी। आई वॉज लास्ट इन माई ओन म्यूजिंग्स, मैं अपने ही ख्यालों में खोया था। म्यूजिंग्स मीन्स थाट्स, मैं अपने ही ख्यालों में खो गया था। ओके, मेरा सबक समझ आया होगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।